Hello everyone, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial. Today my video is for those aspirants, those who are preparing for CGL exam, because they have requested me to upload some computer awareness MCQs for according to CGL syllabus. So today here is the video and I have represented 50 MCQs and according to them their syllabus. So my request to them and for all those aspirants, those who are preparing for any competitive exams, please do follow my videos and please request me in the comment section. So like this video I will represent, or I will bring more videos for you. So please subscribe my channel Ankita's tutorial and please do share, like and follow my videos. Thank you. So let's get started. So today my topic is this is in the read mode. Let me do it in the presentation mode. Okay, so this is computer awareness MCQs for OSSC CGL exams. मैं पूरा ये CGL की जो सिलेबस है कंप्यूटर अवेयरनेस की, जो जैसे ही सिलेबस है उस एग्जैक्ट उसके जैसे ही मैंने MCQs मैंने बनाने की कोशिश की है मैंने. सो देखिए यहाँ पे मैंने आज की टॉपिक मैंने क्या क्या मैंने कवर अप किया है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग 15 MCQs फॉर दैट. नेटवर्किंग विथ लैन और वॉन, इसके लिए 15 या फिर 20 आई गेस 20 MCQs. देन some MCQs in JavaScript. So total 50 MCQs I have present in my next video. और उसके सिलेबस में और भी जो टॉपिक है मैं उसके रिगार्डिंग फिर मैं MCQs बनाते जाऊंगी. ओके, सो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following are procedural languages? 4 options are given: Pascal, Smalltalk, C, और both Pascal and C. And जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने उसको ग्रीन कलर में मैंने उसको हाईलाइट किया है, एज यू कैन सी हियर. सो द करेक्ट आंसर आई हैव मेंशन्ड हियर व्हाट, बोथ पास्कल एंड सी. ये मैं इसकी आंसर थोड़ी बहुत मैं आपको मैं ये बोली हूँ आपको कि जो एक्सप्लेनेशन मुझे जहाँ देने की ज़रूरी मुझे लगता है मैं वहाँ पे आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी. पूरा तो डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, फिर भी लिटिल बिट आइडिया आई विल गिव यू दैट. सो सी, लैंग्वेजेस आर ऑफ 2 टाइप्स. जैसे कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एक है और एक नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है. और पर्टिकुलर इस लैंग्वेज के बारे में मैंने पूरा वीडियो, मेरे प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल में. आप उसके थ्रू जाके उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज मतलब क्या है? जो लैंग्वेज है जो कि which tells us how the procedure is written. Procedural means what and how, means how the procedure is written and what will be the output. That is called procedural language. अभी इसका कुछ एग्जाम्पल ले ले तो क्या क्या होगा procedural language में, जैसे कि C, C++, Java, all have their own process. Suppose I want to do any calculation. Suppose a simple program I want to write, that is addition of 2 numbers. 2 plus 2, the result will be 4. So I will write the process, I will write the program, then compiler will execute the program and the output will be displayed on the monitor. So this is the process. So without writing the process it can give you the result. So ये ही है procedural language. So इसमें कौन कौन सा आपका procedural language है? Pascal and C जो है ये 2 आपके procedural language है. Okay, my next question, choose the correct remarks. C++ allows any operators to be overloaded. Is it correct? No. Some of the existing operators cannot be overloaded. Is it correct? No. Operator precedence cannot be changed. Yes. ये हो सकता है क्योंकि operator precedence जो है ये change नहीं हो सकता. So this is the correct answer. Next question. Which of the following operators cannot be overloaded? ये ग्रेटर देन जो है आपका क्या कंपैरिजन ऑपरेटर है. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय द कॉलोन, ये कौन सा है? ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है. नेक्स्ट वन इज योर क्या है? डॉट ऑपरेटर. सो ये जो 2 ऑपरेटर है ना, आपका जो कंडीशनल ऑपरेटर है और डॉट ऑपरेटर है, दीज 2 ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड.
सो द करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी. ओके, बाकी आपका जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये वी कैन यूज विथ सी आउट फॉर शोइंग द आउटपुट और वी कैन यूज इट फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सो yes, these two operators, conditional operator and dot operator, cannot be overloaded. Moving to the next question. Overloading is otherwise called as what? Overloading को otherwise क्या बोलते हैं? Virtual polymorphism, transient polymorphism, pseudo polymorphism, ad hoc polymorphism. So answer क्या होता है? इसका correct answer है overloading is otherwise known as ad hoc polymorphism. याद रखिए इसको. Okay. Next question. C++ encourages structuring a software as a collection of components that are. C++ जब भी आपको क्वेश्चन कुछ भी MCQs में क्या होता है ना, जो क्वेश्चन आता है कभी कभी ट्रिकी आता है, कभी कोई लेंथी क्वेश्चन आता है, तो आप जब भी लेंथी क्वेश्चन आएगा ना, जस्ट ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू स्मॉल सेंटेंसेस सो दैट यू विल बी गेट इनटू दैट. Okay, so C++ encourages structuring a software as a collection of components that are क्या क्या components इसमें आता है, जो components आता है उसका property usually क्या होता है उसका. highly cohesive and loosely coupled, not highly cohesive but loosely coupled, high cohesive and tightly coupled, not highly cohesive but tightly coupled. And the correct answer I have mentioned here what? Option A, that is high cohesive and loosely coupled. Why? See, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारे C++ में, द कंपोनेंट्स इनसाइड द क्लास विल बी रिमेन इंटीग्रेटेड और बाउंडेड, जो कि हाईली कोहेसिव होते हैं. इसीलिए ये हाईली कोहेसिव प्रॉपर्टी को नीड करता है, बिकॉज द कंपोनेंट्स इनसाइड द क्लास में जो कंपोनेंट है हमारे C++ पे विल बी रिमेन इंटीग्रेटेड और बाउंडेड. सो इसका नेचर क्या होगा, ये हाईली कोहेसिव हो गए. अभी ये लूजली कपल्ड किसके लिए है? सपोज वन क्लास हैव सम कंपोनेंट्स एंड अनदर क्लास हैव सम कंपोनेंट्स, देन दोज कंपोनेंट्स शुड नॉट बी बॉन्ड वेरी क्लोजली, दे शुड बी लूजली कपल्ड. So you can say this is the property of C++, that is it is highly cohesive and loosely coupled हो. So जो suppose class 1 के कुछ components है, class 2 के कुछ components है, they should not be bond very closely. So they should be loosely coupled. Okay, so this is the nature. Our next question, which of the following specifiers need not to be honored by the compiler? इसमें से कौन से specifiers ऐसे हैं जिसको compiler honor नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर मैंने क्या मेंशन किया है, बोथ ए एंड बी, दैट इज रजिस्टर एंड इनलाइन. मीन्स रजिस्टर एंड इनलाइन बेसिकली सेंड्स रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर टू परफॉर्म फॉर देमसेल्व्स. रजिस्टर जो है, इनलाइन जो है, वो बेसिकली कंपाइलर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं टू परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद कंपाइलर परफॉर्म करता है. बट कंपाइलर स्टैटिक को ऑनर करता है. बट दीज टू स्पेसिफायर्स लाइक रजिस्टर इनलाइन, दैट इज नीड नॉट टू बी ऑनर्ड बाय द कंपाइलर. ओके. Next question, which of the following cannot be declared as static? 4 options again are there, class, object, functions, both A and B. So the correct answer what I have mentioned here, that is both A and B, means both class and object, that is cannot be declared as classic. Function can declared as static because we do that in Java, but class and object cannot be declared as static. बिकॉज जावा में हम फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, बट क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लास हैविंग नो नेम, विच ऑफ द ऑप्शन शुड बी करेक्ट? एक क्लास है जिसका अगर कोई नेम नहीं हो तो उसके हिसाब से ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैन इट बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, कैन इट हैव अ कंस्ट्रक्टर, can it have a destructor, both A and B. So what is the answer I mentioned here? Both A and B means can it be passed as an argument, can it have a constructor. Because मुझे ये लगता है कि मतलब क्या है, class having no name known as, जो क्लास का कुछ नेम नहीं होता है, फर्स्ट तो इसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस क्लास. जस्ट कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज ये भी एग्जाम में आ सकते हैं. अगर एक एनोनिमस क्लास है तो विच ऑफ द ऑप्शन शुड बी करेक्ट, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. जो क्लास उसका कोई नाम नहीं होता है उसको एनोनिमस क्लास बोला जाता है. ओके. बिकॉज सी कैनट हैव ए डिस्ट्रक्टर, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन हैव डिस्ट्रक्टर. मुझे लगता है अगर
आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बोल सकते हो, ठीक है। सो कैन नॉट हैव ए डिस्ट्रक्टर इज इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन हैव डिस्ट्रक्टर, सो रेस्ट टू ऑप्शंस आर करेक्ट। कैन नॉट बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एंड कैन नॉट हैव ए कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a method to be an interface between the outside world and a class it has to be declared। एक मेथड है जो कि इंटरफेस के इंटरेक्ट करता है किसके बीच में, आउटसाइड वर्ल्ड में एंड क्लास के बीच में। अगर एक इंटरफेस के जैसे काम करता है एक मेथड, तो इसको क्या बोलते हैं? ओके, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन MCQ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार 4 बार पढ़िए, तो उस क्वेश्चन में ही आंसर होता है, आप यू विल एबल टू सॉल्व दैट। ओके, सो क्या है उसका, जो कि एक हमारे एक आउटसाइड वर्ल्ड और क्लास के बीच में एक मेथड जो कि इंटरफेस की तरह काम करता है, तो उसको कैसा डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग? इट हैज टू बी डिक्लेयर एज पब्लिक ऑब्वियसली, बिकॉज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास, राइट। सो इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द मेथड। पब्लिक जो है वो आउटसाइड ऑफ द क्लास हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन ए स्ट्रक्ट द एक्सेस कंट्रोल इज पब्लिक बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, इन ए क्लास द एक्सेस कंट्रोल इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। इन ए क्लास द एक्सेस कंट्रोल इज पब्लिक बाय डिफॉल्ट, और बोथ A and B। So what is the correct answer? I have mentioned, as you can see here, both A and B. Why? Because जो स्ट्रक्ट है ना वो बाय डिफॉल्ट हमेशा पब्लिक ही डिक्लेयर होता है, एंड जो क्लास है ना इट इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। जस्ट कीप इट योर माइंड, स्ट्रक्ट मीन्स पब्लिक एंड क्लास मीन्स प्राइवेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड इन ए क्लास ऑफ अ C++ प्रोग्राम आर बाय डिफॉल्ट व्हाट? प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, नॉन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज प्राइवेट। चाहे फील्ड हो, फंक्शन हो, वेरिएबल हो, जो भी हो, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही होता है, isn't it? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड वेन एवर। कब हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, और ए क्लास इज यूज्ड। सो द करेक्ट आंसर व्हाट? एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, दैट टाइम यू कैन call a constructor. When an object of a class will form immediately, constructor can be called. Next question, which of the following remarks about the differences between constructors and destructors are correct? इनमें से कौन सा remarks है जो कि constructor destructor के बारे में और वो सही है? Constructor can take arguments but destructor cannot. ये सही है absolutely. Next question, next option, constructor can be overloaded but destructor cannot. ये भी सही है। डिस्ट्रक्टर कैन टेक आर्ग्यूमेंट बट कंस्ट्रक्टर कैनट। नो, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स आपके लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? द कंस्ट्रक्टर विच टेक आर्ग्यूमेंट्स नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बिकॉज कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड अनदर वन इज ए नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो येस, दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट, A and B. Okay, next question, choose the correct statements regarding inline functions. It speeds up the execution, it slows down the execution, it increases the code size, both A and C. So correct answer I have mentioned here, both A and C will be correct because it speeds up the execution and it increases the code size. So these two options are correct regarding the inline functions. Next, if many functions have same name, ये थोड़ा lengthy question है. If many functions have same name, which are the following information, if present, will be used by the compiler to invoke the correct function to be used. अगर बहुत सारे फंक्शन है जिसके नेम सेम है, देन इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर है दैट इज विल बी यूज्ड बाय द कंपाइलर. कंपाइलर उसको यूज कर सकता है टू इन्वोक द करेक्ट फंक्शन टू बी यूज्ड. कौन सा वो सही फंक्शन है जिसको यूज करने के लिए कंपाइलर इन्वोक कर सकता है अगर बहुत सारे फंक्शन के सेम नेम है. ठीक है, तो इसको ऐसे ही आप ब्रेक डाउन करके अगर ये सब सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे ना तो इट इज़ ईजी फॉर यू. इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ ये बार बार मैंने. ठीक है ना. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन चलिए देखते हैं. द ऑपरेटर, ये फर्स्ट वाला कौन सा ऑपरेटर है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, राइट. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. सेकेंड वन द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन. थर्ड वन फंक्शन सिग्नेचर और बोथ ए एंड सी. सो द करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी मीन्स द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. बिकॉज क्लास और मेथड के बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपका यूज होता है.
और फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शन सिग्नेचर मीन्स पैरामीटर्स व्हेन वी पास एज आर्ग्यूमेंट्स, बाय यूजिंग दिस टू इट कैन आइडेंटिफाई फंक्शंस रियल आइडेंटिटी। ये जो हम लोग अगर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन सिग्नेचर को यूज करके एक फंक्शंस का क्या, एक फंक्शन का रियल आइडेंटिटी है वो हम इसको डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज द डी। सो इतना था मेरा, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग के लिए 15 MCQs मैंने प्रेजेंट किए थे। उसके बाद ये जो 15 या फिर 17 कुछ आएंगे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 15 या 17 मैंने बनाया है। ये नेटवर्किंग का है, नेटवर्किंग विथ लैन एंड वॉन। सो चलिए, विच इज़ द नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड ऑन UDP and is a component of the internet protocol suite defined by IETF? First question, and this is lengthy, so let me read it again. Which is the network protocol that is used on UDP? अच्छा, इसमें कुछ टर्म है जिसका फुल फॉर्म, 2-3 टर्म ऐसे आएंगे जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आया UDP। अभी UDP क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP का फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या होता है? UDP ऑपरेट्स ऑन द टॉप ऑफ द IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? सो UDP ऑपरेट्स ऑन द टॉप ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है? टू ट्रांसमिट डेटाग्राम्स ओवर ए नेटवर्क। एक डेटाग्राम्स ओवर ए नेटवर्क को ट्रांसमिट करने के लिए UDP कहाँ पर ऑपरेट होता है? वो इंटरनेट प्रोटोकॉल में ऑपरेट होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या पूछा गया? विच इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड ऑन UDP एंड इज ए कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट। मैंने तो बोला आपको UDP किसका है, वो ऑपरेट होता है IP के ऊपर ऑपरेट होता है। एंड किसके द्वारा डिफाइंड बाय IETF। व्हाट इज IETF? दैट इज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। दिस इज द फुल फॉर्म। अभी IETF का काम क्या होता है? IETF यू कैन से इट इज, ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द इंटरनेट ओनली। एंड इसका काम क्या है? एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दैट मेक अप द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट। एंड इसका गोल क्या है? इट्स गोल टू मेक द इंटरनेट वर्क इवन better. That is the main motto of your IETF. Again, I am saying IETF is the Internet Engineering Task Force. Okay. So अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? Scalability, SNMP, screening and multitasking. Sorry, multicasting. So the correct answer is SNMP. Again, what is the full form of SNMP? That is the Simple Network Management Protocol. And इसका काम क्या है? इट यूजेस UDP एज इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा गया है। SNMP क्या करता है? इट यूजेस UDP एज इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि डिफाइंड बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इजंट इट? नेक्स्ट, इफ 2 or more routers are available in distributed routing, which route should be selected? अगर 2 और मोर राउटर्स है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग में अवेलेबल है, तो कौन सा रूट हम लोग सिलेक्ट करेंगे? लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, हाई पॉसिबल कॉस्ट, बोथ A and B, और लिंक कॉस्ट? सो द करेक्ट आंसर इज लिंक कॉस्ट, बिकॉज लिंक कॉस्ट शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज द पैकेट्स कैन बी सेंड टू द डेस्टिनेशन मोर क्विकली एंड मोर रिलायबली. दिस इज द रीजन वाई वी आर सिलेक्टिंग लिंक कॉस्ट, बिकॉज जो पैकेट्स है, पैकेट्स मीन्स क्या? डेटा. जो डेटा पैकेट्स में सेंड करेंगे, दैट इज किसको सेंड करना है? डेस्टिनेशन को सेंड करना है ऑब्वियसली. सो द पैकेट्स कैन बी सेंड टू द डेस्टिनेशन इवन मोर क्विकली एंड मोर रिलायबली इन द लिंक कॉस्ट. दैट्स व्हाई वी सिलेक्ट लिंक कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स and router are added between them, then it form what? अगर एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, उसमें क्या राउटर कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं उस सेगमेंट के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर क्या है इसमें? इंटरनेटवर्क, इंटरनेट, इथरनेट, नेटवर्किंग. सो करेक्ट आंसर इज इंटरनेटवर्क. इंटर मीन्स व्हाट? जिसमें कनेक्शन हो, आपस में कनेक्शन जिसके हो. और एक सिंगल कंप्यूटर को अगर हम लोग सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, उसके बीच में अगर राउटर कनेक्ट करेंगे, किसके लिए? डेटा ट्रांसमिशन के लिए. तो ऑब्वियसली राउटर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आपस में कनेक्टेड हो गए. सो दिस इज द आंसर, इंटरनेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रोटोकॉल लेयर्स आर यूज?
sorry, which protocol layers use the protocols that are www, http, ftp, smtp, email etc. कौन सा प्रोटोकॉल्स लेयर है जो कि ये सब प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं? अगेन आई विल फोकस ऑन द फुल फॉर्म्स. www, you know that, world wide web. http, that is the what? Hypertext transmission protocol. Next one is your ftp, what? File transfer protocol. Next one is your smtp, that is the simple mail transfer protocol. नेक्स्ट सो ईमेल, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल. सो ये सारे जो प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल लेयर्स है जो ये यूज़ करते हैं? तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, बिकॉज दीज आर, यू कैन से द एप्लीकेशन गाइज, इजंट इट? सो तो ये एप्लीकेशन लेयर में ये सब प्रोटोकॉल्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ नेटवर्क दैट इज technology connects that this technology connects sites that are in the diverse location. Dash is a network, or which network that connects sites that are in the diverse location, you can say. अभी one man LAN और none of the above. करेक्ट आंसर क्या? ऑब्वियसली वन. सी, वन मैन लैन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल में, मैंने जब नेटवर्किंग के कंसेप्ट डाला था 2 या 3 वीडियो आई गेस, मैंने नेटवर्किंग के ऊपर दिया है, टोपोलॉजी के ऊपर, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के ऊपर. एंड आप वो वीडियो थोड़ा फॉलो कर लीजिए तो आपको इजी होगा. तो इसका डेफिनेशन मैं नहीं बोलूँगी. अभी लैन क्या है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क है. मैन क्या है आपका? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. वान क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें आप लैन भी कनेक्शन हो सकता है, मैन भी हो सकता है. तो एक डाइवर्स लोकेशन को अगर कवर करना हो, ऑब्वियसली वन इज द बेटर ऑप्शन टू कनेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स दैट मे फॉर्म अ सर्कल. रिंग टोपोलॉजी, लैन, मैन, वन. सी, when it comes about circle then obviously the answer is ring topology, क्योंकि ring topology क्या होता है? वो सर्कुलर मैनर में होता है, रिंग के जैसा दिखता है. सो उसके बीच में हम लोग जो भी ऐड कर सकते हैं, राउटर्स या भी जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं. सो दिस अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, रिंग टोपोलॉजी यू कैन से इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स दैट मे फॉर्म अ सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन, DHCP stands for what? This is the a full form question. Digital Host Configuration Provider, Dynamic Host Configuration Protocol, Dynamic Host Configuration Provider. None of the mentioned. So the correct answer is Dynamic Host Configuration Protocol. Just keep it in your mind. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. Our next question. The first computer network in the world was the dash for the United States Department of Defense. इसको भी मैंने जब नेटवर्किंग पहले जो वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट नेटवर्क क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसको किसने यूज़ किया था, मैंने उस वीडियो में मैंने डाला है. यू कैन फॉलो दैट वीडियो. स्टिल आई एम टेलिंग यू द फुल फॉर्म हियर. द ARPANET जो है, दिस इज द फर्स्ट एवर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, यू कैन से. एंड ये किसके लिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट डेवलप किया था, फॉर किसके लिए? फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. ओके, सो ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. आई रिपीट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN is an example of dash network. ISDN is an example of dash network. Circuit switched, packet switched, ring based और frame based. The correct answer है क्या? सर्क्यूट स्विच्ड. बिकॉज क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल. ये ISDN का फुल फॉर्म तो पहले आपको ये जानना है. स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN. ओके, सो इट इज अ सर्क्यूट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम. इट इज बेसिकली सर्क्यूट स्विच्ड टेलीफोनिक नेटवर्क सिस्टम है दैट ट्रांसमिट्स बोथ द डेटा एंड वॉइस ओवर अ डिजिटल लाइन. Because it is a telephonic system, telephonic network system, so it transmits its data both in the form of data and voice over a digital line. Our next question is, if a computer on the network shares the resources for other to use, it is called what? एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि कुछ रिसोर्स शेयर करता है
फिर अदर कंप्यूटर के लिए, अदर सिस्टम के लिए यूज़ के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लाइंट, सर्वर, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर। ऑब्वियसली इट इज़ द सर्वर हु शेयर्स इट्स रिसोर्सेज फॉर टू यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लार्ज नेटवर्क डैश टोपोलॉजी इज यूज्ड। जो कि लार्ज नेटवर्क है उसमें वो कौन सा टोपोलॉजी ये यूज़ करता है? मेश, बस, स्टार और रिंग। तो द करेक्ट आंसर इज स्टार टोपोलॉजी जो है वो लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वेव इज कॉल्ड इट्स डैश। इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज जो फिजिक्स के लोग हैं वो तो इसको समझ ही पाएंगे। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है कि वेव की, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पैकेट्स आर स्मॉल एंड ऑल द सेम साइज दे ऑफन कॉल्ड एज व्हाट। पैकेट से, जो कि पैकेट्स मीन्स का जिसमें डेटा हम लोग स्टोर करते हैं पैकेट्स में, द पैकेट्स आर स्मॉल एंड ऑल द सेम साइज दे ऑफन कॉल्ड एज व्हाट। अगर स्मॉल स्मॉल है और सब पैकेट सेम साइज है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स, पैकेट स्विच, सर्कुलर स्विच, नॉन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज सेल्स एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज MS एक्सेल। एक्सेल में आपको पता है जो उसको क्या बोलते हैं? रो और कॉलम की इंटरसेक्शन को हम लोग सेल बोलते हैं। वो सब स्मॉल स्मॉल साइज है और सब सेम साइज के, उसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा ही स्टोर करते हैं ना। हम जो कैलकुलेशन करना हो या फिर कुछ भी लिस्ट बनाना हो हम लोग उस सेल के अंदर ही करते हैं ना। सो दिस इज सेल इज अ काइंड ऑफ place where we can store our data, right? So the best example is MS Excel. Next question, network of network is known as what? जैसे कि डेटा ऑफ डेटा बोलते हैं ना, डेटा ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं? मेटा डेटा, जो हम लोग स्टोर करते हैं डेटा। एज वैसे ही नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज नोन एज व्हाट? इंट्रानेट, इंटरनेट, टोपोलॉजी और इंटरफेस। द करेक्ट आंसर इज इंट्रानेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पैकेट विद द कोड इज ट्रांसमिटेड, it is received and processed by every machine on the network, then this mode of operation is called what? I am explaining this question briefly. When a packet with the code is transmitted, एक पैकेट है जिसमें कोडिंग कुछ कोड है और वो ट्रांसमिट होता है, और ट्रांसमिट होने के किसको ट्रांसमिट होता है? अगर ट्रांसमिट होता है तो कोई ना कोई उसको रिसीव तो करेगा। सो इट इज़ रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय, रिसीव होने के बाद क्या करेगा? वो मशीन उसको प्रोसेस करता है। ओके, ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क में ये जो काम होता है किसमें? नेटवर्क में हो रहा है। एक पैकेट से जिसमें कुछ कोड है वो ट्रांसमिट होता है और उसको एक मशीन रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करता है एक नेटवर्क में। ओके, सो दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड व्हाट? पूरा डिटेल में मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। सो अभी इस मोड ऑफ ऑपरेशन को अभी क्या बोलते हैं? मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, यूनिकास्टिंग और पॉइंट टू पॉइंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट इट गेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड एनकैप्सुलेट्स देम इनटू डैश। ये जो लेयर्स है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सब क्या है? OSI मॉडल जो है ना, ओपन सिस्टम इंटरफेस, उसके अंडर हमारे कितना लेयर है? 7 लेयर्स है। तो ये सब लेयर उसके अंदर आता है, isn't it? So the data link layer takes the packet it gets from the network layer and encapsulates them into dash frames, saves, trailer, packets। तो करेक्ट आंसर है फ्रेम। डेटा लिंक लेयर जो है वो पैकेट्स को लेता है कहाँ से? नेटवर्क लेयर से। अगर लेता है तो उसको एनकैप्सुलेट्स किस में करता है? वो फ्रेम्स में करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट ए सिंगल प्लेस, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इट इज़ नोन एज लैन। कि डाइवर्स एरिया को जब कनेक्शन होता है तो उसको वैन कनेक्शन होता है। अगर के सिंगल प्लेस में कनेक्शन होता है लोकली, यू कैन से दैट, तो उसको लैन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन कैन डू व्हाट? ईमेल, गो ऑनलाइन, रन फास्टर और शेयर इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है लैन को, वो सब क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स आर इन TCP/IP मॉडल? TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इज योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें कितना लेयर है? 4 लेयर्स है। जैसे कि OSI मॉडल में आपका 7 लेयर्स है, ऐसे ही TCP/IP में आपका कितना लेयर है? आपका 4 लेयर्स है। यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेटवर्किंग। आपका नेटवर्किंग में OSI मॉडल से हो या फिर TCP/IP मॉडल से हो, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं MCQs। ओके, नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी यूज इन लैन?
हाइब्रिड, बस और हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी, नॉन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, बस और हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी। सी, लैन ना आपका स्टार रिंग टोपोलॉजी भी यूज कर सकता है। ओके, स्टार टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड बाय लैन एंड रिंग टोपोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय लैन। बिकॉज यहाँ पे मेंशनड नहीं है स्टार एंड रिंग, ओनली बस टोपोलॉजी नेम हैज बीन मेंशनड, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आई हैव चूजन हियर बस और हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, मैंने बनाया है ये नेटवर्किंग के ऊपर। बैंक एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, लैन, वॉन, मिक्स्ड नेटवर्किंग, मल्टीपर्पज नेटवर्किंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वैन। सो आप अगर कोई पूछे कि वन का एग्जाम्पल क्या हो तो बेस्ट एग्जाम्पल इज बैंक एटीएम फैसिलिटी, इज एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट इतना ही था मेरा 36 तक क्वेश्चन, इतना आपका नेटवर्किंग का गया। अभी ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैंने अप टू 50 आई हैव रिप्रेजेंटेड जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, JavaScript is what type of language? Object oriented, object based, functional programming, all of the above. See, we can't say it is purely object oriented, but yes, it is object oriented based, so it is object based. Okay, JavaScript is object based language. Next question, JavaScript code can be written in dash, JavaScript file dot bracket में JS file, HTML document directly, JavaScript file and HTML document directly, or in style sheets, that is .css file. So the correct answer is both A and B. You can see JavaScript file में भी लिखा जा सकता है JavaScript कोड को, and also HTML document में भी directly JavaScript कोड को लिखा जा सकता है. Okay. Next question, which symbol is used to separate JavaScript statements? Comma, colon, hyphen, semicolon. So the correct answer, we usually use semicolon symbol to separate JavaScript statements. Okay. Next question, JavaScript ignores what? New lines, tabs, space, all of the above. So very important, JavaScript जो है new lines, tabs, spaces ये सब को ignore करता है. Okay. Next, dash JavaScript is also called client side JavaScript, Microsoft Navigator, LiveWire और Native. करेक्ट आंसर क्या है? नेविगेटर जो है ये क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट नेविगेटर ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर ब्राउजर डिटेक्शन. ओके, सो इट कैन बी एक्सेस्ड बाय विंडोज और नेविगेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, लाइववेयर. लारावेल लाइववेयर जो है जावास्क्रिप्ट का आपका, वो जो है आपका नेविगेटर जो है वो है आपका क्लाइंट साइड, और ये जो है आपका सर्वर साइड है. बिकॉज लारावेल का जो लाइववेयर इज अ ग्रेट टूल टू अचीव डायनामिक बिहेवियर ऑन पेज. ओके, विदाउट डायरेक्टली राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड. ओके, जावास्क्रिप्ट कोड को आपको डायरेक्टली ना लिख के भी आप ये इसको यूज़ करते हुए आप लिखने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली, बिकॉज ये एक टूल ही है जो डायनामिक बिहेवियर ऑफ द पेज को ये अचीव कर लेता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, dash tag is an extension to HTML that can enclose any number of JavaScript statement. इसमें से कौन सा टैग है? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज जो स्क्रिप्ट में एनक्लोज किया हुआ है जो ब्रैकेट में. सो ये टैग जो है स्क्रिप्ट है, ये एक एक्सटेंशन है HTML का. ओके, सो इट कैन एनक्लोज एनी नंबर ऑफ JavaScript statements. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following attribute can hold the JavaScript version? Which of the following attribute? What are the options? Language, script, version, none of the above. So correct answer क्या है? Language is an attribute that can hold the JavaScript version. Next question, what is the correct JavaScript syntax to write hello world? इसमें से कौन सा syntax है जो कि correct है कि hello world लिखने के लिए? तो correct answer क्या है? Document dot write hello world. See, ये सब मेरा कैपिटल में है, आप इसको प्रोग्राम जब लिखोगे ना आप इसको लिख सकते हो. मेरा पता नहीं ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं जब लिखती हूँ ये ऑप्शंस कैपिटल ही क्यों आता है. आई हैव टू गेट इनटू इट. सो इसको आप प्रोग्राम में लिख के आप देख सकते हो. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इमेज मैप्स कैन बी यूज्ड विथ जावास्क्रिप्ट? सर्वर साइड इमेज मैप्स, क्लाइंट साइड इमेज मैप्स, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज क्लाइंट साइड इमेज मैप्स जो है that can be used with the JavaScript. Okay. Next question, what does the no script tag do? Enclose text to be displayed by non-JavaScript browser, prevents scripts on the page from executing,
describes certain low budget movies or none of the above. तो करेक्ट आंसर क्या है? ये जो नो स्क्रिप्ट टैग है ये क्या एनक्लोज करता है? दैट इज एनक्लोज टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड बाय नॉन जावास्क्रिप्ट ब्राउजर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. JavaScript entities starts with dash and ends with dash. जावास्क्रिप्ट जो एंटिटी है वो किस में से स्टार्ट होता है, किस में से खत्म होता है? सेमीकोलन और सेमीकोलन एम्परसेंड और कोलन, एम्परसेंड और सेमीकोलन. एंड द करेक्ट आंसर इज द लास्ट ऑप्शन, दैट इज द एम्परसेंड एंड सेमीकोलन. स्टार्ट्स विथ एम्परसेंड एंड एंड्स विथ द सेमीकोलन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जावास्क्रिप्ट? A low-level programming language? No. A scripting language pre-compiled in the browser? No. A compiled scripting language? No. An object-oriented scripting language? Yes. An object-oriented scripting language is the best option to describe the JavaScript. At last but not the least, which of the following is not considered as a JavaScript operator? This new delete type of. करेक्ट आंसर है जो दिस एक ऑपरेटर है जो कि एक जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर वो नहीं है. बाकी न्यू डिलीट टाइप ऑफ आपका सब जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर है. सो दिस इज द 50 MCQs आई हैव रिप्रेजेंटेड. आई होप यू गाइज विल लाइक इट. सो प्लीज़ फॉलो दिस MCQs बिकॉज जो भी सिलेबस है मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको बनाई हूँ. सो प्लीज़ subscribe my channel Ankita's tutorial. I repeat, please subscribe my channel and please do and share this video. आप शेयर करोगे ही तो ही ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जाके पहुंच पाएगा. सो प्लीज़ शेयर कीजिए आप वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू ऑल.